Good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम. आज तो काफी लोग ज्वाइन किए. गुड स्ट्रेंथ ऑफ क्लास. मैम लैन काम कर रहा है क्या? लैन मैम है. ओके, so we'll continue. Switch on your videos, everyone. Okay, switch on your videos, everyone. वीडियो ऑन कीजिए. कुछ नहीं, नेगेटिव वाइब लाना है. आवाज आ रही है ठीक से? Yes, ma'am. नो मैम, बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. Is it okay now? क्लियर नहीं आ रहा है मैम, बार बार रुक जा रहा है बीच में. Then I have connected it on Ma'am, hotspot. Wi-Fi is little weak. Okay, we'll continue with the class. Let's see how it goes. Okay, switch on your video, everyone. We were discussing social security. In social security, we were discussing the social security acts. Can anyone tell me which are the acts in social security and what is social security? What are the major contingencies of life? Bhaskar, Aditya, Aditi, Vibha, Anurag, Rohit, Abhishek, Bittu, Ayushi, and Akriti. Switch on your videos. Rest of you, please switch on your videos. Okay. Can someone tell me what is social security? कल क्लास में हुआ है. मैम सोशल सिक्योरिटी के अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं. डिसेबलमेंट, डेथ, सिकनेस, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज. ये छह वो कौन से पॉइंट्स है? क्या पॉइंट है वो? व्हाट यू मीन व्हेन यू से सोशल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं? यस सिक्योरिटी के अंदर आता है. ठीक है. These are those contingencies of life. These are those emergencies of life where the working capacity is reduced or the working capacity completely goes over. Okay, this is known as social security. समझ में आई बात? Now, social security acts. Talking about social security acts, there are certain. Now, why are these framed in the form of act? These acts have been formed by the government, mostly central government, and in that case, these are important because when these contingencies happen to someone in somebody's life, what happens is that that person's living is shuttled, okay, to a great extent, and he cannot help himself. He needs society on the whole to help that person. For example, in case of death, what happens is that in case of death, the working capacity is completely over. You can understand that अगर किसी कमाने वाले का घर में डेथ हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट घर में और घर के बाकी लोगों पे क्या होता है. उस केस में सोशल सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम होता है. और गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है? थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वेट अ मोमेंट. सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में थोड़ा आगे हम बता देते हैं. हम लोग कितने एक्ट्स कवर किए थे? जल्दी जल्दी आदित्य तुम रिवाइज करो. मैम बस ग्रेचुइटी तक हुआ था. एम्प्लॉयज पीएफ और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट अभी बचा हुआ है. The first one was ESI Act 1948.
I told you that ESI Act was one act which was formed. This act was formed because it was an initiative for the health insurance of the employees or the workers, mostly the worker class in the organization. Okay, when this act was enacted, it was one of its kind, not just in India but in entire Southeast Asia. Even today, this act is a very comprehensive act because this contains, or this includes many social security things like disablement, death, maternity, a thing which is not included in other acts, which is unemployment, then funeral benefits, okay, like these. The second act was, और ESI की एलिजिबिलिटी कितनी है? Any worker, देखो ESI पहले तो ये 21,000 सेंट्रल, pound. yes, and this act is enacted by central government. केंद्र सरकार ने ये कानून लाया है, इसीलिए it applies to every industrial establishment, okay, ports, plantations, everywhere. And the eligibility is that anyone who has their salary up to 21,000 is included in this app. Included माने eligible है, उनको ये act की सुविधा अवेल करने के लिए एलिजिबल है। देखो वर्किंग क्लास है, सरकार ये जानती है। इंडिया में कुछ सोशल सिक्योरिटी ऐसा है जो कि मतलब सरकार प्रोवाइड करती है बिना कंट्रीब्यूशन, जैसे ग्रेच्युटी, लेकिन कुछ हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में से एक हैं, और यहाँ पर अगर सोशल सिक्योरिटी कंप्लीटली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी तो काफी लोड सरकार पे आ जाएगा, इसीलिए इन चीजों को कॉन्ट्रीब्यूटरी रखा गया है। यानी ESI में वर्कर अपनी सैलरी का, अपने वेज का 0.75% कंट्रीब्यूट करता है और सरकार उसके लिए 3.75 उसके वेज का कंट्रीब्यूट करती है। सोच लो कि जब तुम्हारे सैलरी का कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है, 20,000 का 1% कितना हुआ? $20,000 का 1% कितना होता है? 200 300 मैम। 200 200। तो तुम सोच लो कि जिसकी सैलरी 20,000 है, 20,000 है, उसकी सैलरी कम से 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए वो कंट्रीब्यूट करेगा, ओके, सिर्फ 200 रुपए, और उसका 3.25% निकाल लो, 20,000 का 3.25% निकाल लो, उतना कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? सरकार करेगी उसके बिहाफ पे। तो तुम सोच सकते हो कि कोई वर्कर को कितनी सुविधा है और इसमें कितना टाइप का बेनिफिट्स है, प्लस दे आर ट्रीटेड थ्रू ESI हॉस्पिटल्स। हर जगह पे ESI का अपना हॉस्पिटल होता है जिसके लिए डॉक्टर वगैरह और जो फैसिलिटीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करता है, ठीक है, केंद्र सरकार रिक्रूट करके भेजती है डॉक्टर्स को। यहाँ फुलवारी शरीफ में ESI का हॉस्पिटल है, कभी जाते जाते देखिएगा। उसी तरीके यस से मैम, बेनिफिट मिलते हैं मैम, मेडिसिन का पूरा बेनिफिट मिलता है, मेडिसिन का, ऑपरेशन का, सिकनेस का, सब कुछ होता है, और कितने कम पैसे में। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज प्रोवाइडिंग टू द वर्किंग क्लास, ठीक है। ये हुआ ESI। ESI के बाद आइए आप सेकेंड एक्ट कौन सा लिखे थे? ग्रेजुएटी मैम। ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी कल समझाए थे तुम लोग को। ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी स्टार्टेड एज डोनेशन, डोनेशन की तरह ये स्टार्ट हुआ। ये मतलब डोनेशन करके हम फील गुड फैक्टर करते हैं कि हमने डोनेट किया, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम डोनेट करके अपनी आत्मा को शांति देते हैं। तो जो बड़े एम्प्लॉयज होते थे ना, जिनके यहाँ बहुत लंबे समय तक लोग काम किया करते थे, सो जस्ट एज अ मीन्स टू काइंड ऑफ encourage them, just as a means to thank them, be thankful towards them कि भाई आपने इतना लंबा समय तक हमारे साथ काम किया, इतना लंबा एसोसिएशन था, तो हम खुश होके कुछ पैसा आपको देते हैं। धीरे 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 इसका सिस्टम चेंज होने लगा ग्रेच्युटी का। फ्रॉम डोनेशन इट चेंज्ड इट्स फॉर्म इनटू डिफर्ड वेज, ओके। डिफर्ड वेज का क्या मतलब होता है? बकाया धन, बकाया पैसा। यानी कि ये काइंड ऑफ एक रूल बन गया, एक सटल रूल बन गया कि मालिक के पास हमारा कुछ बकाया पैसा है। फ्रॉम डोनेशन टू डिफर्ड वेज, देन टू स्कीम अग्रीमेंट। स्कीम का मतलब ये बहुत ज्यादा स्कीम की तरह होने लगा कि भाई न्यूज़पेपर
के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ भी एक स्कीम होने लगा। अब देखो, लॉ तो था नहीं, कोई कानून इसको गाइड नहीं किया। जब इसको कानून गाइड नहीं किया तो क्या हुआ, कभी मालिक देता था और जब नहीं देता था तो हंगामा होता था। यही होगा ना। तुम अगर आदत लगा दो कि किसी को पैसा देने का, उसको एक्सपेक्टेशन है कि मजदूर, खासकर मजदूर वर्ग को, कि तुमको ये पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम, और फिर तुम नहीं दोगे उसको पैसा, तो हंगामा तो वो करेगा। Got it? In that case, what happened is that the workers dragged the employers in the form of court cases to court. Court case होता था और ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि कोर्ट केस वर्कर के फेवर में आता था। Then central government came up with a law और 1972 में ग्रेच्युटी का एक लॉ बना, ठीक है। So now the law is given by the name of the Payments of Gratuity Act 1972. ग्रेच्युटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? इसका एलिजिबिलिटी होता है that you should have rendered at least 5 years of continuous service in the organization. 5 साल कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि 3 साल काम किए फिर 2 महीने छोड़ के चले गए उसके बाद वापस आके ज्वाइन किए। नो, एट अ स्ट्रेच इट शुड बी 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। गॉट इट? ग्रेच्युटी का पैसा क्या रोका जा सकता है? हाँ, ग्रेच्युटी का पैसा रोका भी जा सकता है और इसका पार्शियल फॉरफीचर भी किया जा सकता है, यानी एक पार्ट भी रोका जा सकता है, या फिर होली कंप्लीटली ग्रेच्युटी का पैसा रोक लिया जा सकता है। इसका एक्ट में प्रोविजन है। क्या कंडीशंस बनते हैं ऐसे जिसमें ग्रेच्युटी का पैसा रोका जाता है, रोका जा सकता है? बताओ, क्या सोच के बताओ, क्या कंडीशंस हो सकता होगा? जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और ग्रेच्युटी एक लीगल अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर ये पैसा रोका जा सकता है तो कोई मेजर ग्राउंड ही होगा। 40% में पैसा रोका जा सकता है ना? तो कारण बताओ, वो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करती है। मैम अनडिसिप्लिन होने पर मैम। वेरी गुड, इनडिसिप्लिन होने पे। और देखो, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जैसे तुमने कोई मेजर मिसकंडक्ट किया है, माइनर मिसकंडक्ट नहीं, क्योंकि ये लॉ है, ये तुम्हारा अधिकार है, इसलिए माइनर मिसकंडक्ट पे ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन अगर तुमने कोई मेजर मिसकंडक्ट किया है या फिर तुम्हारा वायलेंट बिहेवियर है वर्क प्लेस पे, राइटर्स, राइट मानी दंगा, दंगा को ट्रिगर करने वाला या वायलेंस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला बिहेवियर है अगर वर्क प्लेस पे, तो भी रोका जा सकता है। तुमने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी डैमेज की है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के तुमने एम्प्लॉयर का सामान तोड़-फोड़ किया है, चीजों को उठा के फेंका है, यानी एक सेंस में तुमने एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, यू हैव डैमेज्ड द एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। वैसे केस में भी ग्रेच्युटी का पैसा रोका जा सकता है। ओके, yesterday in the class मैम अगर कंपनीज में हैवी लॉसेस होते हैं किसी एम्प्लॉय के थ्रू और वो बाय डिफॉल्ट गिल्ट नहीं हो तो पैसा उसके रोके जा सकती है। गिल्ट नहीं हो तो इस पे तो इंक्वायरी बैठती है जी, ये इतना आसान नहीं होता है। इसको ये तब तक सस्पेंडेड रहता है मैटर जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होता है। जैसे कॉम्पेंसेशन में भी यही होता है, ठीक है। जैसे प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जो नॉमिनी है, एक नॉमिनी होता है ना, होता है। अब मान लो कि जो देने वाला है, सर्विस कर रहा है, उसका डेथ हो गया तो पैसा किसको जाएगा? नॉमिनी को जाएगा। नॉमिनी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, तब क्या होगा? क्या पैसा दे दिया जाएगा उसको? नो मैम, नहीं, ट्रांसफर नहीं होता है। तब तक ट्रांसफर नहीं होता है जब तक केस उसको, जब तक कोर्ट उसको एक्विट नहीं कर देती है कि यू आर फ्री ऑफ ऑल चार्जेस। तो ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं दी जाती। Unless and until things are crystal clear, the money won't be transferred. Got it? मैम ना मैम उसको कंपनी को एफआईआर से क्या मतलब है? कंपनी को एफआईआर से क्यों नहीं मतलब है? इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि
तुम अगर इंडिस्क्रिमिनेटली ये पैसा ट्रांसफर कर दोगे तो वो उसका मिसयूज हो सकता है। वो बोनाफाइड पर्सन नहीं है, किसी के ऊपर अगर मर्डर का चार्ज चल रहा है तो उसको पैसा कैसे ट्रांसफर कर दोगे तुम? वो तो सोशली और लीगली कल्प्रिट है, इवन इफ नॉमिनी है तो भी क्या। मैम अगर ये कोई पर्सन गिल्टी है किसी वजह से, तो वो पीएफ का पैसा तो विड्रॉ कर ही लेता है मैम। क्या बोले ग्रेचुटी में मेजर मिसकंडक्ट, ग्रेचुटी का पैसा रोका नहीं जाता है। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के लिए लॉ में प्रावधान है कि अगर कोई बहुत मेजर मिसकंडक्ट हुआ उस केस में जनरली डिसिप्लिनरी छोटे मोटे डिसिप्लिनरी चीजों के लिए ग्रेचुटी का पैसा कभी नहीं रोका जाता है। ठीक है, यस मैम। so this was about gratuity। तो ग्रेचुटी में पैसा कितना एक्स्ट्रा मिलता है? कितना एक्स्ट्रा ग्रेचुटी में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, पर कितना एक्स्ट्रा? डोनेशन फॉर्म में मिलता है ना मैम? डोनेशन फॉर्म में मिलता है ना वो? नो नो इट्स नॉट डोनेशन फॉर्म। ये 15 स्टार्ट days जब हुआ कॉन्सेप्ट तब की हम बात बता रहे हैं। 15 डेज यस भास्कर। जो और समर में 7 days। मैम वो 30 days क्या लिखाए थे मैम, वो याद नहीं आ रहा। listen perennial organization yani those organizations that function all around the year, for them it is 15 days of extra money for every 1 year of completed service, and for seasonal organizations, for seasonal organization 7 days of money, 7 days of wage for every 1 year of completed service, 7 days of extra wage for every 1 year of completed service। ये होता है ग्रेचुटी का एक्स्ट्रा पैसा। 30 नहीं लिखवाए थे भास्कर। ग्रेचुटी का पैसा दिया कैसे जाता है? तुम्हारा जो लास्ट वेज ड्रॉन है, रिटायरमेंट मान लो तुमने जब ज्वाइन किया तब तुम्हारी 1000 सैलरी थी, अब 1000 के हिसाब से जोड़ोगे तो कुछ भी पैसा बनेगा क्या? उस पैसे का क्या वर्थ है आज के डेट में? कुछ नहीं। मान लो आज तुम्हारा 50,000 सैलरी है, तो जो तुम्हारा लास्ट वेज ड्रॉन है you divide it by 26 excluding 4 Sundays, and then that becomes your 1 day salary. Now since 15 days of extra salary is given to you, you multiply that 1 day salary with 15, that will give you the money that you will have for 1 year. Now multiply it with the number of years that you have completed the service. Say you have worked for 25 years. मैम हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि कंपनी जब भी पे आउट बनाती है स्लिप में, तो वो सीटीसी जो लिखती है वो डिफरेंट, और वो जो पे बेसिक पे बनाती है वो अलग रहता है। मतलब कि वो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं? सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी तुमको कंपनी हायर करने में जितना पैसा एक साल में खर्च कर रही है, दैट इज नोन एज सीटीसी। ओके, नाउ basic salary is a fixed proportion of your salary. Got it? Fixed proportion. Normally, okay, generally speaking, this is not a rule, this depends upon the organization, but generally speaking, this basic salary is approximately 45 to 55, or you can say 40 to 55%. इसमें से कुछ भी हो सकता है, this much percent of your CTC। चलो कैलकुलेशन बनाओ कॉपी में, पता समझ में आएगा। सीटीसी तुम्हारा 4 लाख है मान लो, ठीक है, देखो सैलरी 4 लाख, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो तुमको बेसिक सैलरी देती है 40% ऑफ सीटीसी पे। बेसिक सैलरी लिखो, बेसिक सैलरी इज 40% ऑफ सीटीसी। ओके, कैलकुलेट द मंथली बेसिक सैलरी। कैलकुलेट द मंथली बेसिक सैलरी, कैलकुलेट करके बताओ जरा, अभी समझ में आ जाएगा। बेसिक सैलरी कितना है मैम? बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी इज 40%। मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन 40% पे देती, मान लो 1600 मैम। अभिषेक बताया 1600, बाकी इतना कम। अभिषेक अगर बेसिक सैलरी होगा, नो मैम, रॉन्ग 1 मिनट। तो पूरा सैलरी मिला करके तो 3000 रुपए ही होगा सिर्फ।
नो मैम 1,60,000 आ रहा है। 400। तुम लोगों को समझ में आया? CTC is 4 lakh per annum, 4 lakh per annum. और ये मान लो, assume this that the organization is paying at the rate of 40% of basic, 40% of CTC. Then 1,60,000 calculate. 1,60,000 मैम 1,60,000 क्या है? सैलरी है, बेसिक सैलरी 40% ऑफ किसी का। तुम हमको एक बात बताओ, 4 लाख पूरे साल का सैलरी है और महीना का सैलरी 1,60,000 कैसे होगा? ये सिर्फ मैम 33,333 होगा मैम। ये ओवरऑल सिर्फ है मैम। अब कोई इसके नहीं बाद बता रहा है सही से। एक मिनट मैम। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। से योर सैलरी इज 4 लाख पर एनम। 13,000 आएगा मैम। 13,000 वेरी गुड, वेरी गुड। 13,200 आएगा। नाउ यू आर राइट। सोच के भी तो देखो, 4 लाख पूरे साल में और महीने का एक महीने का सैलरी 1,60,000। मंथली तो 30,000 के करीबन होगा मैम सर, 36 या 37 के करीबन होगा अप्रोक्स। तो मंथली कैसे कैलकुलेट किए? ना हम तुमको अलाउंस बताए, ना हम तुमको बेनिफिट बताए, तुमसे सिर्फ हम बेसिक पूछे, वो बताया अभी भास्कर 13,200। देखो कैसे कैलकुलेट होता है। 4 लाख पर एनम सैलरी है, सपोज करो तुमको CTC मिला, उसमें 4 लाख पर एनम सैलरी। एक महीने का सैलरी कितना हुआ? 33,333। 33,333 लमसम मान लो 33,000। अब वो 40% के हिसाब से देती है, यानी ये 33,000 का 40% निकालो, कितना होगा? 13,200। अब समझ में आया सबको? यस मैम। ये हुआ 13,200 हुआ बेसिक सैलरी। अब इस बेसिक सैलरी पे अलाउंसेस ऐड होता है। तुमको मोटर अलाउंस मिलेगा, तुमको स्टेशनरी अलाउंस मिलेगा, तुमको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, तुमको जितना टाइप का अलाउंस तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन देता है वो सारा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में अलाउंस इसी बेसिक पे ऐड होता है। दूसरी बात, इस बेसिक सैलरी से छेड़छाड़ नहीं की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। जब घटाया जाता है ना, जैसे पैंडेमिक हुआ था तो you could see that every organization was going with either job cut or those who are working, no option other than salary cut हुआ था, तो अलाउंसेस घटा दिया जाता है। ठीक है, बेसिक सैलरी से छेड़छाड़ नहीं की जाती। बेसिक सैलरी जनरली किसी पोस्ट के लिए फिक्स्ड होती है और ये बहुत टेक्निकली फाइंड आउट किया जाता है कि what will be the basic salary of a particular post. Got it? Okay. समझ में आया अजीत? यस मैम। चलो आगे बढ़ो। come back to our topic. The next जो एक्ट है वो है एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट। देखो, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट का ईयर क्या है? देखो जरा ध्यान से। 1952। नो, 23। और हम ये पहले ही बताएं आपको कि कोई भी एक्ट पढ़ने का तरीका ये है कि फर्स्ट यू नोटिस कि किस साल ये एक्ट पास हुआ है, देन यू विल अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस एक्ट। ये आजादी के पहले का है तो कुछ अलग कारण होगा, आजादी के बाद का है, प्री लिबरलाइजेशन है, पोस्ट लिबरलाइजेशन है। जैसे कि ग्रेचुटी बहुत रीसेंट एक्ट है, 1972 इज वेरी रीसेंट। ओके, तो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन 23, यानी कम से कम आजादी के 25, 26, 27 साल पहले का ये एक्ट है। आप सोच लीजिए कि आजादी के पहले की दुर्दशा क्या हुई होगी, वर्कर्स की क्या रहती थी। आजादी के बाद ही हम इतने गरीब थे कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखने का चॉइस किया, क्योंकि वी वर नॉट रेडी फॉर एक्सपोर्ट। द सेकेंड थिंग इज कि हमारा अपना ही खाना पूरा नहीं हो रहा था, सो वट एवर वी प्रोड्यूस्ड वी कंज्यूम्ड इट विद इन द कंट्री। नाउ ये उस टाइम का दौर था जब कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा। ठीक है, देखो तुम अगर किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हो तो दिस बिकम्स द एथिकल, द मॉरल ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ओके, लाइक इफ यू गॉट हर्ट, if there's some kind of disablement,
if there is some kind of problem at the workplace, then it is the moral duty of the employer to take care of all of that in the organization. Okay? पहले भी ऐसा होता था. अगर आप पुरानी मूवीज को देखें और कुछ रिलेट कर पाए तो आप देखेंगे कि मजदूर काम कर रहा है और मजदूर का हाथ कट गया, मजदूर का पैर कट गया, मजदूर खून निकल रहा है, मजदूर मर गया. इस तरीके की भी बात होती थी मिल्स में, because hygiene and safety were two things which evolved over the time, but we were not always conscious about that from the beginning. Now we have started talking about the labor rights. It was not always like this. Okay? And talking about safety, it was worse. And we are talking about it 50 years before independence. क्योंकि एक्ट बनते बनते बनता है, उसके पहले उतनी कंडीशंस वर्सन हुई होंगी. Okay? So if we can relate this with an old movie where the workers are working in the mill and after the injury or after the disablement, their friends or their co-workers are fighting with, on what fighting, requesting the employer to give some compensation to pacify his present condition, and the employer denying it completely. देखा है ये चीज? देखा है मालिक से मुआवजा मांगने के लिए यूनियन बना के गए हैं और मालिक ने देने से मना कर दिया. ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा बहुत ज्यादा होता था. सबसे बड़ी बात कि कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए, देखो तुम कॉलेज के अंदर हो तो हम तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिन एनफोर्स कर सकते हैं. तुम कॉलेज के बाहर क्या करते हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? तुम कॉलेज के बाहर जो भी करो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट कॉलेज के अंदर तुमको डिसिप्लिन में रहना है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सेम थिंग, if you want to claim compensation, you need to prove that this injury has been caused in the organization by the nature of work in the organization. यानी अगर आपको compensation या मुआवजा क्लेम करना है तो आपको organization के अंदर आके इस चीज को प्रूव करना होगा कि चोट तुमको organization के अंदर लगी है, यहाँ पे काम करने की वजह से लगी है. अब वर्कर होता था कमजोर और मालिक होता था माइटी. वो ये प्रूव ही नहीं करने देता था कि चोट तुमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगी है. ओके? He would threaten the worker. He would resort to every measures to disprove this fact कि चोट आपको ऑर्गेनाइजेशन में लगी. और नहीं एग्री कर रहे हो तो जाओ केस करो, कोर्ट चले जाओ. कोर्ट भी अंग्रेजों का था, कोर्ट चले जाओ. The thing is, जिस वर्कर का अपना खाना पूरा नहीं हो रहा है, जो चोट लगने की वजह से कुछ पैसा इसलिए मांग रहा है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन इतनी खराब है, वो कोर्ट केस करने जाएगा मालिक के लिए? बताओ जरा. नो मैम. नहीं, उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो वहां चले जाए. और चला भी जाएगा तो क्या, जिसके पास पैसा है वो कोर्ट केस जीत जाएगा. He cannot hire a lawyer or anything like that, right? जो मजबूत है वो बेस्ट रिसोर्सेज पूल कर सकता है. इसीलिए वर्कर को मुआवजा मिलता ही नहीं था. ग्रेजुअली इस बात पे काफी अप्रोच हुआ एंड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप विद दिस एम्प्लॉइज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट था. ये पहले 2010 में अमेंडमेंट होने के बाद इस वर्कमैन को एम्प्लॉइज बनाया गया. सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि किसी तरीके का डिसेबलमेंट हो या डेथ हो तो उस पे वर्कर को दिया जा सके मुआवजा. इसका एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जैसे कि 3 दिन तक चोट रहनी चाहिए, आपको चोट ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ वर्क होनी चाहिए. सिर्फ वर्क नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अगर आपको कुछ होता है तो आपको उसमें कवर किया जाएगा. जैसे देखते हो इलेक्शन के टाइम पे स्कूल के टीचर को इलेक्शन ड्यूटी मिल जाती है ना, कहते हैं ना, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहीं कुछ बना के भेजा जाता है. यस मैम, Yes, ma'am. भेजा जाता है मैम. तो वो ऑन ड्यूटी नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग दैट इज द कोर्स ऑफ ड्यूटी, तो उसको ऑन ड्यूटी ही माना जाता है. उस समय अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसको एक्ट में कवर किया जाता है. समझ आई बात? Yes, मैम ma'am. पहले तो पैसा भी और एग्रीमेंट भी कराया जाता था, किसी ऐसी जगह भेजा जाए तो.
तो टर्म्स एंड कंडीशंस में सब कुछ लिखा रहता अभी है। भी होता है, अभी भी होता है मैम। अभी भी होता है, मैम। जम्मू साइड, जम्मू एरिया में मैम जाने पे उस पे दिया जाता है जहाँ रिटर्न पे में कि यू आर गोइंग विलिंगली, आप अपने मर्जी से जा रहे हैं। यस मैम, जहाँ इलेक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर मतलब कि डेंजरस इलाके में जाने से पहले सिग्नेचर वगैरह करा लेता है। But people are covered under that. Okay. Now, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हो गया। अब इसमें भी डिसेबलमेंट दो मतलब जैसे देखो, पार्शियल डिसेबलमेंट होता है और टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल माने 100% से कम, टोटल माने 100% से ज्यादा। 100% से ज्यादा कैसे होगा? इस एक्ट में 4 शेड्यूल है, उसमें से एक शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। हम तुम लोगों को एक्ट को कंसाइज वे में बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ा बड़ा एक्ट है। एक एक्ट में ये है कि जैसे ये अंगूठा टूट गया तो इसका कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी माना जाएगा, ये रिस्ट टूट गई तो कितना परसेंट, हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कोई उस तरीके का कुछ हो गया, कट गया तो कितना परसेंट है। तो मिला जुला करके अगर 100% से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम टोटल डिसेबलमेंट मानते हैं, 100 से कम है तो पार्शियल, उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलता है। ठीक। नाउ मैटरनिटी एक्ट, कमिंग टू द लास्ट एक्ट, पीएफ हम समझा चुके थे। नेक्स्ट वी कम टू मैटरनिटी एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज before getting framed like an act. Maternity benefit was implemented by a lot of state governments. Bihar was also one of them. Bihar, Bengal, Kerala government, इस तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट लाया गया था। लेकिन कोई भी, इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट्स में, इसीलिए फाइनली इन 1961 the government of India came up with a maternity act of 1961. This act is implemented मैम आपकी आवाज everywhere. नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है तो सिर्फ उसको नहीं आ रही है या बाकियों को भी नहीं आ रही है? मैम बहुत लैग कर रहा है साउंड में। One moment. No, but the volume is full. Okay. Maternity Benefit Act. Now, this Maternity Benefit Act, it says that a woman should have, the eligibility is that a woman should have worked for at least 80 days in an organization before availing this facility. और इस एक्ट में प्रीनेटल, पोस्टनेटल छुट्टी एंड मैम बेनिफिट्स। आवाज बहुत लैग कर रहा है। वेट, अभी आवाज आ रही है तुम लोग को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। Please respond everyone. मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है? बहुत कट रही है ना। What to do? I've connected it on LAN. What more to do? सुनने लायक